Hello everyone, this is Sandeep Kumar, Economics faculty at Shiv Jyoti Educational Group Kota. I welcome you all in the economics class. So dear students, in today's class we are going to talk about Indian economic development and revising the chapter number 7, and the chapter is employment growth, informalization and other issues. So at first we should know what is the exact meaning of worker. As I have told you that we are talking about the employment. So in employment there is the vital role of any of the worker. So who can be a worker? A person who is contributing in the home or domestic works, or a person who is contributing in the economic activities for the country. So let's see here, it refers to an individual who is engaged in some productive activity to earn a living. Now dear student, it is very clear here. Productive activity to earn a living refers to what? Economic activity. So a worker will be a worker who is occupied, who is engaged in any of the economic activity for the country. Next is types of workers. How many types of worker can be there? The one is self-employed and the another is hired workers. So self-employed people, those who are having their own entrepreneurships, they are having their own business, small scale industries and all. Next is hired workers. Hired means workers, those who can be hired from another side, from the market by outsourcing and all, such as labor class workers you can see, salaried workers you can see, they all are known as hired workers. Next is labor force. What is labor force? Force, you know very well what does it refer? That is a group of people of any type, okay. But here the term labor is added, so that means a force, people those who are devoted for the labor work, they are occupied in the labor working, that is what? People those who are there working in the market on the daily basis, taking the wages in respect of the same, they are known as labor, and the group of the people is known as labor force. Next is workforce. Absolutely the very same thing, people those who are working for the country, or people those who are contributing in the economic activities. Or workers are itself workforce. Next is labor supply. Labor supply, सप्लाई यू नो वेरी वेल, हम ऑलरेडी बेटा वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट चीज को पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे टर्म लेबर के साथ क्यों इंक्लूड हो रहा है? दैट इज व्हाट, कि मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कितनी है. लेबर सप्लाई रेफर्स टू व्हाट? अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर वर्कर्स इन द मार्केट इज नोन एज लेबर सप्लाई. So here there is a positive relationship between the wage rate and labor supply. क्योंकि जैसे जैसे वेज रेट मार्केट में इंक्रीज होगी, अमाउंट जो हम उनको पे कर रहे हैं वो ज्यादा पे करेंगे. सो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, मोर एंड मोर पीपल विल कम इन द मार्केट फॉर द कंट्रीब्यूशन. दे विल कम मोर एंड मोर टू डू द लेबर क्लास वर्किंग एंड ऑल. ठीक है, जैसे जैसे हम इनकी सैलरी को इंक्रीज कर देते हैं, आई मीन वेजेस को इंक्रीज कर देते हैं, तो वैसे ही दे विल कम इन द मार्केट. And vice versa, if we reduce the amount of their wages and all, they will switch to any of the another activity. Next is jobless growth. Jobless growth. The one is job growth and the another is jobless growth. There is a very typical reason behind of this beta. Nowadays, you know, we know very well that population is increasing as according to the proportion of job opportunities. That is the big reason of the jobless growth, because people are not getting the job in the markets, in the society. That is why they are becoming jobless. Alright, they are becoming unemployed people. But the another thing is that if person is capable of getting the job in formal sector, but he is not getting the opportunity because lesser number seats are there, ज़्यादा seats available नहीं है, opportunity ज़्यादा available नहीं है, that is why they are not getting the job over there in the formal sectors. So rather than moving towards the informal sectors, the people prefer to remain as jobless people. That also increasing the jobless growth in the country, number of people those who are unemployed in the country. Then the next is casualization of employment. Casual workers. Sometimes they are getting the job, sometimes they are not getting the job in the market. It happens many of the times, you may have seen, such as labor workers are there. It is not very sure that they will get the job on the daily basis in the market.
It happens few of the days he get the job. If weather is not favorable, some factors are not favorable, in that condition they remain as unemployed. This category is known as casual workers. Casual means not on the regular basis, only and only randomly. They are even not sure whenever they leave from the home for the work. They are not sure that they will be getting the work today or not. This is known as casualization of employment. That is also increasing the poverty in the country and jobless growth as well. It means that unemployment is also increasing because it is also type of unemployment, जो आगे भी हम डिस्कस भी करेंगे बेटा. Next is informalization of employment. Informal sectors. We know very well कि हमारी कंट्री में informal sectors बहुत ही कम है, इसका proportion भी हमने पढ़ा है बेटा पहले. But what is formal sector? Formal sector होता क्या है? So the formal sector is a sector where there are minimum 10 workers are working at the same place. Minimum 10 workers are working at the very same place, and even they are getting some of the extra benefits such as social security schemes and all, जो national कमी बेटा हमने पढ़ा था, employees contribution and employers contribution. तो इस तरह की अगर कुछ additional securities, कुछ additional facilities receive होती हो, medical treatment मिल रहा है, provident fund का amount receive हो रहा है, these all the things are included in the formal sectors. So there is requirement of the formal sector in the country because informal sector is getting the growth. What is informal sector? जहां पे इस तरह की facilities ना हो, जो अभी मैंने आपको बताया additional facility, number of workers are less there. ठीक है, इस वजह से हमारी कंट्री का जो एक स्टैंडर्ड है, एक जो लिविंग स्टैंडर्ड है बेटा, वो डे बाय डे थोड़ा सा रिड्यूस होता जा रहा है. एज यू मे हैव सीन पीपल दोज आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर वर्क, पीपल दोज आर डूइंग देयर ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज शॉप्स एंड ऑल दे आर हैविंग, एंड पीपल दोज आर वर्किंग इन द ऑफिस इन MNCs, personality, looking and their living standard always differs, and even the remuneration as well. तो ये चीजें सब बेटा मैटर करती हैं. कंट्री में इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, सो वी आर सीकिंग फॉर द थिंग टू इंक्रीज द फॉर्मलाइजेशन, टू इंक्रीज द फॉर्मल सेक्टर्स इन द कंट्री एज फार एज इट इज पॉसिबल. The next term is unemployment. Already we have gone through what is meant by unemployment. People, those who are not getting the work, though they are willing to work. People, those who are willing to work, but they are not getting the chances, they are not getting the opportunities to work anywhere. That type of proportion of the population is known as unemployed. All right, there are few types of the unemployment. I mean, according to the Indian economy, we have segregated term unemployment in different types. The very first is disguised unemployment. Basically this type of unemployment is found in एग्रीकल्चर सेक्टर. पढ़ा है बेटा हमने इसको पहले भी. एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हमें देखने को मिलता है. रीजन क्या है बेटा? फ्यू ऑफ द फैक्टर्स आर फिक्स्ड इन वर्किंग प्लेस. उस फिक्स्ड फैक्टर का हम एक ओवर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते बेटा. एक इक्वल यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता. एंड सेम थिंग हैपेंस इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इट हैपेंस कि जो जहां पे जिस वर्क प्लेस पे काम किया जाना है, वहां पे नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ वर्कर्स फिक्स्ड हो सकते हैं. हाँ कि इतने ही होंगे, इससे थोड़े कम ज्यादा चल सकते हैं, बट बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं हो सकते हैं. अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज भी कर देते हैं बेटा, तो इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वेयर ऑन द डिमांड एंड सप्लाई. पढ़ा है बेटा आपने इस चीज को पहले भी खानेशन थ्योरी में, जहां पे AD एंड AS अप्रोच आपने मार्केट इक्विलिब्रियम वगैरह इन सब चीजों में पढ़ा है. और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अनएम्प्लॉयमेंट में भी आपने चीज पढ़ी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. दैट वेरी ऑफ द टाइम्स वी हैव सीन दिस थिंग कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करते हैं, एक सर्टेन पॉइंट पे हमें AD इज इक्वल टू AS तो मिल जाता है, बट स्टिल इफ वी आर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सो व्हाट विल हैपन? डिमांड विल बी लेसर एंड सप्लाई विल बी इंक्रीज्ड, जो कि एक सप्लायर एक प्रोड्यूसर के लिए लॉसफुल सिचुएशन हो सकती है. तो वो होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. हमें जितने लिमिटेड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी वी हायर्ड, अब उनके बाद जो वर्कर्स उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस. सो दैट कैटेगरी इज बेसिकली नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. द नेक्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. नेम से क्लियर हो रहा है, सीजनल दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट विच अराइजेज ड्यू टू चेंजेस इन सीजन. जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लिया जा सकता है, सीजन होगा तो ही लोगों को एज अ लेबर
हायर किया जा सकता है. दैट कैन बी फॉर द कल्टीवेशन, दैट कैन बी फॉर हार्वेस्टिंग एंड सम अदर एक्टिविटीज एंड ऑल. लेकिन अगर सीजन नहीं है बेटा तो दैट मीन्स उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड नहीं हो सकता है. जैसे कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है, कुछ ऐसे वर्कर्स है जो कि वुलन वर्क में ऑक्यूपाइड होते हैं, वुलन कॉस्ट्यूम्स वगैरह बनाने का काम करते हैं. सो एग्जैक्टली समर टाइम पे उनके प्रोडक्शन को सप्लाई नहीं किया जा सकता बिकॉज पीपल आर नॉट विलिंग टू परचेज दोज प्रोडक्ट्स. सो दे विल गेट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब ओनली इन द विंटर सीजन. रेनी सीजन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स है बेटा तो उनके डिमांड मार्केट में रेनी सीजन में ही आने वाली है. अदरवाइज दे पीपल विल बी रिमेनिंग एज unemployed. Next is open unemployment, coming in, coming out, sometimes coming in and coming out. कुछ इन आउट चलता रहता है बेटा. यहाँ पे कुछ ऐसा ओपन एम्प्लॉयमेंट है जहां पे कि समटाइम्स पीपल गेट द जॉब एंड समटाइम्स दे पीपल डोंट गेट. ये भी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल जहां पे एक पूरा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया हो, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे काफी सारे लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया जाता है. अब स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है बेटा, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, दैट कैन बी रिलेटेड टू एजुकेशन कैटेगरी, दैट कैन बी ड्यू टू द टेक्निकल एंड मैनुअल वर्क्स. रिक्वायरमेंट है मैनुअल वर्कर्स की, लेकिन अवेलेबिलिटी हमारे पास किसकी, टेक्निकल वर्कर्स की. तो उनका कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर यहां पे वेरी कर रहा है, उस वजह से रिमेनिंग पॉपुलेशन को एज अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को सफर करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल कहां से बिगिन हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस. दैट मीन्स ये चलता रहता है ऑन द रोटेशन मोड्स. समटाइम्स पीपल आर गेटिंग द जॉब, समटाइम्स दे आर नॉट गेटिंग द जॉब. बेसिकली अगर आप यहां देखेंगे तो इसमें भी काफी सारी चीजें आपको साइक्लिकल जैसे मिलेंगी. जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, वहां साइक्लिकल भी होता है बेटा, है ना. जैसे वीट का प्रोडक्शन किया जा रहा है, कल्टीवेशन हो गया है, नाउ दे पीपल आर अनएम्प्लॉयड. अब साइक्लिकिंग में क्या हुआ, हार्वेस्टिंग पीरियड आया, सो अगेन दे गॉट एम्प्लॉयमेंट, नाउ दे आर फ्री. अब ड्यूरेशन आता है कि मान लीजिए राइस की क्रॉपिंग करनी है, सो दे विल गेट द जॉब. तो एक तरह से सीजनल भी है ये और एक तरह से साइक्लिकल भी है, जिसका कोई बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है. मार्केट में जैसी सिचुएशन होगी, जैसा साइकिल होगा, देयर कैन बी बूम, देयर कैन बी रिसेशन, डिप्रेशन, एनीथिंग कैन बी देयर. ओके. एंड द वेरी लास्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेटेड में बेटा क्या होगा, लगभग ये वाला भी थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट से मैच हो रहा है. वो क्यों, क्योंकि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जब तक किसी पर्सन को उसके डिग्री के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती है, सो दे विल नॉट बी डूइंग द सेम. अ पर्सन हु इज कंप्लीट विद चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री, एक पर्सन है जिसने सीए किया हुआ है बेटा, और अगर उसको एज एन अकाउंटेंट किसी ऑफिस में 8,000 10,000 रुपीज की सैलरी पे रख लिया जाएगा, सो डू यू अग्री कि वो जाना प्रेफर करेगा? जी नहीं, बिकॉज ही नोज द वर्थ अबाउट हिज डिग्री. तो कुछ ऐसे लोग जो कि एजुकेटेड हैं बट एक राइट अपॉर्चुनिटी, राइट डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज ना मिलने की वजह से दे आर अनएम्प्लॉयड. हमारी कंट्री में ऐसी सिचुएशन भी काफी ज्यादा हो रही है. कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इतने सारे जो हमने टाइप्स पढ़े बेटा अभी अनएम्प्लॉयमेंट के, उनके क्या रीजन है, क्यों हो रहा है ऐसा कंट्री में. फर्स्ट इज स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी की बात करें बेटा, तो उसमें इतना ज्यादा पेसिंग मोड नहीं है. हम आज भी कंपेयर करें इंडियन इकोनॉमी को अदर इकोनॉमीज के साथ, तो इंडिया में आज भी टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा नई नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, पेसिंग मोड बहुत स्लो है. इसी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा, और जहां जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी बेटा तो एम्प्लॉयमेंट भी हम किसको प्रोवाइड करेंगे. पॉइंट नंबर 2, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. दैट इज व्हाट, हायर द डिमांड लेसर द सप्लाई. डिमांड ऑफ व्हाट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. कितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनके प्रोपोर्शन में उन्हें इतनी जॉब सिक्योरिटीज ही प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, गवर्नमेंट कहां से इतनी जॉब्स प्रोवाइड करवा सकती है. जहां एक सेक्टर में 10 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट वहां 10 ही तो अपॉर्चुनिटीज है कि 10 ही वर्कर्स को हायर करेगी. बट कैंडिडेट्स आर 100, दे माइट बी 500, दे कैन बी 1000 एज वेल. इतना ज्यादा प्रोपोर्शन चल रहा है बेटा. ओके. अगर कोई भी गवर्नमेंट एक वैकेंसी निकालती बेटा, मे बी सिलेक्टिंग ओनली 1000 पीपल, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं 1 लाख. तो एक बार आप प्रोपोर्शन देखिए कितना चल रहा है बेटा, एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट्स लड़ाई कर रहे हैं. तो इस वजह से थोड़ा सा पॉपुलेशन का कंट्रोल होना भी जरूरी है, ताकि अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटीज लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी गेन हो सके. डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, ये चीज बेटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि हमारी कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड है,
और थ्योरेटिकल बेस्ड होने की वजह से टेक्निकल नॉलेज ना होना, फील्ड विजिट ना करवाना, ये शॉर्टकमिंग रह जाती है मेरे एजुकेशन सिस्टम में। और जो भी स्टूडेंट्स हैं आफ्टर क्वालिफाइंग ऑल द एग्जामिनेशंस एंड ऑल, जब वो जाते हैं किसी जॉब पे, वहां पे जब अपने वर्क प्लेस पे पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ उसके एबीसीडी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता है कि जो थ्योरी में पढ़ा दैट इज ओके, लेकिन प्रैक्टिकली अप्रोच क्या है, ये प्रैक्टिकली ये चीजें कहां इंप्लीमेंट होने वाली है। तो इस वजह से भी उन्हें कहीं ना कहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसी वजह से थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजीज ऑफ फॉरेन, और फॉरेन टेक्नोलॉजी में हम ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव का यूज कर रहे हैं, और जहां पे कैपिटल इंटेंसिव आ जाता है बेटा वहां पे आराम से बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया जाता है। वो क्यों? क्योंकि जहां 10 लोग काम कर रहे थे उनके जगह सारा एक काम एक मशीन कर लेती है, तो 10 पीपल आर अनएम्प्लॉयड, उनकी पोस्ट ही खत्म कर दी जाती है वहां से। तो जितना ज्यादा हम फॉरेन टेक्नोलॉजी से ट्यून्ड होते जा रहे हैं उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्री में इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन लेबर फोर्स। अब जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी बेटा, सो अकॉर्डिंगली वैसे लेबर फोर्स भी इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि हर एक पर्सन रॉयल बॉर्न नहीं होता है बेटा, हर एक पर्सन का खुद का बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन बिजनेस एंड ऑल वो सब नहीं होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैनी ऑफ द पुअर पीपल आर देयर, जो दोज हु आर स्टिल वर्किंग इन लेबर वर्क एंड ऑल, जो लेबर फोर्स हैं, तो उनका भी नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, और वो इंक्रीज होने की वजह से भी हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन इंक्रीज हो रही है। Then the next is remedial measures for unemployment. कंट्री में गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, कौन कौन से इसके ट्रीटमेंट किए गवर्नमेंट ने सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो सके। सो द फर्स्ट इज एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। जीडीपी को थोड़ा पुश किया जा रहा है, जैसे तैसे करके ग्रोथ करवाई जा रही, गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम्स फाइंड आउट कर रही फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, ताकि लोग इसी बहाने काम भी करेंगे, उन्हें कुछ रेम्यूनरेशन मिलेगा और जीडीपी भी इंक्रीज हो पाएगी, क्योंकि जीडीपी इंक्रीज होगी तभी तो हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर पाएंगे बेटा। कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, गवर्नमेंट काफी टाइम से बेटा इस चीज के लिए लगी हुई है, काफी सारे इस तरह के कैंपेन्स स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट, ताकि पॉपुलेशन को प्रिवेंट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। 1 चाइल्ड नॉर्म, 2 चाइल्ड नॉर्म, अदर कंट्रीज भी इस चीज को फॉलो करी, ताकि जैसे जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल होगा ऑब्वियसली प्रोपोर्शनली अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी इंक्रीज हो पाएंगी। Next is encouragement of small scale industries. Why people are running behind the jobs only? If they are having the gut feeling in themselves, they can start the small scale industries and even they can provide the jobs to other people. हर एक पर्सन आज जॉब के पीछे क्यों भाग रहा है? क्यों चाहते हैं कि हमें सबको गवर्नमेंट जॉब ही मिले, हम किसी ऑफिस में वर्क करें? If they are having the even little bit amount, not all but those who are gutful, तो वो अपनी ही एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, वेदर इन द अर्बन एरिया और मे बी इन रूरल एरिया, सो दैट वो खुद तो वर्क करेंगे सही, लेकिन अपने साथ में 2, 4, 5, 8, 10 लोगों को भी अगर वहां पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं तो कंट्री की जीडीपी तो इंक्रीज होगी सही, अपार्ट फ्रॉम दैट अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट करें तो वो भी एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड हो रहा है। अब वो कैसे बेटा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो सकता है, अपनी खुद की एक छोटी सी इंडस्ट्री स्टार्ट करना, अपना एक खुद का सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना, वो भी तो एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अपना बिजनेस डेवलप करना, अपनी शॉप स्टार्ट करना, अपने ही अमाउंट के लेवल पे एक ऑफिस वर्क स्टार्ट करना, तो क्यों हम फिर गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे जा रहे हैं? इवन वी नो वेरी वेल कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर हमारी कंट्री में से सम ऑफ द चंक अगर 20, 30, 40% पॉपुलेशन भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर देती ना बेटा, सो एग्जैक्टली दोज पीपल आर रियली नीडी, उनको गवर्नमेंट जॉब्स इजीली अवेलेबल हो पाएंगी और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सकता है। So dear students, this was all about our chapter employment and all. Hope so all the things are clear too. So see you all in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.